Yes, sir. Okay. So, okay, Meenakshi, so we are done with this problem and we are moving for the another one. Okay. So, give me a second. So, not questions already we have done. Yes and not, right? So, taking one problem from Yes. here. This is a good problem, I think. So, I will take it for you. Okay. Okay. Can you read the problem, please? Read the problem. The table shows the number of boys and girls in year 7, 8, and 9 at a local school. Find the probability that a randomly chosen number of year 8 is a boy. Right. So, how you will do this? So we'll take total as 360. We will take it as total. Wait. So in this questions, year 7, year 8, year 9 at the local school, number of boys and girls they have shows, right? What is the probability that a Yes. random chosen the member of year 8 is a boy? So how many boys we have in the year 8? 66. And in year 8, total number of students are? 110. So 110. So only they're asking for year 8. So we can say here PE probability. So we can say 66 upon 110. And आपको जो इसको simplify करके जो answer आएगा that you can write down. Correct. Okay, sir. Find the probability that a randomly chosen boy is a member of year 8. Now what do you think? Sir, 110 upon 360. कैसे? How? Sir, they are not saying about only the boys or girls. They are not particularly talking about them. So we will take a total of boys and girls in year 8 and total of them in all the years, maybe. No, wait a second. Chosen boy is a member of year 8. एक्चुअली आपने शायद समझा नहीं इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा. सेंटेंस आपने पहले समझा क्या सेंटेंस बोला इन्होंने? हेलो. Yes, sir. पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था द सेंटेंस वाज सेइंग I will read the sentence. Probability, find the probability that randomly chosen member of year 8 is boy. मतलब year 8 में से हमको चूज करना था. हमको किस में चूज करना था? ईयर Year 8 8, में. तो ईयर 8 में टोटल स्ट्रेंथ वाज 110, 110. Out of 110, how many boys are there? 66. 66. So that's why I have written this. Correct? Now, in Yes. the second question, find the probability randomly chosen boys is a member of year 8. मतलब इसमें से सिर्फ boys की बात कर रहा है. They are not talking about the whole school. They are saying टोटल बॉयज में से अगर ईयर 8 का बॉय चूज होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल बॉयज कितने हैं? 66 upon 208. राइट. सो आंसर बी विल बिकम हियर 66 अपॉन 208. क्लियर? Yes. अच्छा. Yes. अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन मेंबर ऑफ द स्कूल. अच्छा, अब पूरे स्कूल से पूछ रहा है तो अब पूरे स्कूल का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 360. तो अब थर्ड वाले आंसर में क्या हो जाएगा? 66 upon 360. राइट. क्लियर? Yes. ओके फाइन. सो वी विल मूव फर्दर. तो आप ये सिंपल प्रॉब्लम्स तो आपने कर लिया है. ओके. नाउ वी आर मूविंग लिटिल अहेड and that is known as mutually exclusive outcomes. What we say? Mutually exclusive outcomes. Okay. Outcome. जो कि कहने को ये कहते जरूर हैं mutually exclusive outcomes and blah blah blah. मैंने वो चीजें आपको कल ही पढ़ा दी हैं. ठीक है, पूछो कैसे? A hurt and a king. Remember? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Yes, sir. देखो ये आपके बोर्ड में म्यूचुअली नाम नाम ब्ला 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 जरूर दे देते हैं. ये देखो, दे आर सेइंग दैट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स का मतलब ये होता है ए और बी, ये प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। क्या पूछते हैं प्रोबेबिलिटी? A or B. ए और बी। अगर इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटी हो, इवेंट हो, so they says that A and B are mutually exclusive, right? आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिख रखा है डाइस लिया है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर आता है, राइट? So they are what? Mutually Yes. exclusive. Outcomes of experiment are not always mutually exclusive. For example, if you draw a card of pack, one outcome is might be hurt and another is king. So hurt और king जो है यहाँ पे लेकर इन्होंने mutually exclusive नहीं बताया है, right? So दोनों ही अगर अलग अलग लोगे तो mutually exclusive नहीं होगा, but if you are taking hurt and king at a both time, so they are will be mutually exclusive, right? और mutually exclusive में simply हम ये काम करते हैं, और इसको करने का मतलब ये हो जाता है कि PA निकाल लिया और PB निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको क्लियर समझ आएगा कि हमने क्या किया था, नहीं किया था, राइट? कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो सर मुझे समझ नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर मैं समझाता हूं कि व्हाट दे आर एंड हाउ वी विल वर्क अबाउट इट। क्लियर? क्लियर? ओके सर। अच्छा, अब देखो इसमें यस सर। yeah, we are going to take it, don't worry. So we are going to take a question here and I will show you. Uploading. Can you see the question here? Yes sir. Please read the question. The breakfast menu at a works canteen is always one of 4 options. Some of these options are more likely to be on the menu than others. The table shows the options available on one day together with the 3 of the 4 probabilities. Right. So copy the table and fill in the value of missing probability. अगर इसमें तो easy है 0.1, 0.4, 0.3 को add कर देंगे and we'll Last subtract में from बचेगा, minus. right, correct. Okay. Find the probability that breakfast available at randomly chosen day is cereals. Hello. Yes sir. So cereals के लिए क्या करेंगे? Cereals में हमारे पास जो आंसर है वो लिख देंगे हम सीधा। अच्छा, अब ये देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो, सॉसेस और बेकन एंड एग्स, 2 आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं। Yes sir. एक मिनट, ये 2 आइटम आ गए यहाँ पे, चेक करो। Yes. सो जब 2 आइटम आए, आर दे 2 इवेंट्स? Are they 2 Yes. events? So we can say what? They are mutually exclusive event. What we can say that? We can say it as Mutually mutually exclusive. exclusive events. They are the 2 events basically, and 2 events are working together at the same time, right? So we can call it as they are mutually exclusive event. And what is the probability of it? So sauces की probability थी point कितना? 0.4. 3. और बेकन की क्या थी? 0.1. 0.1. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.4. 0.4 हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते क्या है? मतलब कि जहाँ पे 2 इवेंट्स एट द सेम टाइम वर्क कर रहे हैं वो होते हैं। यस, यू कैन से दैट। 2 इवेंट्स जो हैं वो एक साथ अगर आपके पास वर्क कर रहा है, सो सेम जगह से, राइट? सो यू कैन से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके ओके, सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसका एक सेंटेंस मैं और बता देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक और, दोनों एक जैसे इवेंट नहीं होने चाहिए। दोनों एक जैसे इवेंट नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे सेंटेंस भी लिख देता हूँ। नहीं होना चाहिए। यस, इसका मतलब ये है कि दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन हैपेंस द अदर डू नॉट, द अदर डू नॉट। डू नॉट। मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ।
ताकि आपको ना कुछ क्लियर हो जाए। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। Just taking the example. Can you hear me? Yes, sir. एक सेकेंड बस। अरे यार ये क्या गड़बड़ चीज आती है। ओके, आई थिंक आपको ये इमेज दिखाऊंगा तो क्लियर। अच्छा ठीक है, ये यस, ये चीज सही होगी आपके लिए। कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। अपलोडिंग। Can you see here mutually exclusive event and independent event? Two things I have written. Yes, sir. अब देखो mutually exclusive event में क्या है, they are separate item, they are separate Separate items, एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्या है यहाँ पे, एक दूसरे के साथ कोई भी connection कनेक्शन नहीं नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाएगा, दे हैव लिटिल बिट द कनेक्शन हियर। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूं कि इसमें क्या कहते हैं क्या नहीं। ओके, एक बात याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं दे, अगर वेन डायग्राम आपने पढ़ा है, हेलो, No, sir. वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है, ओके कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपलोड करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक वेन डायग्राम का मैंने फोटो लिया है, ठीक है, क्या लिया Sir, which diagram? इसको कहते हैं वेन डायग्राम। जो सर्कल सर्कल देख रहे हो आप, ये नीचे में सर्कल सर्कल्स आर कॉल्ड एज वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ। अब एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, ठीक है। इन दोनों में अगर कोई भी, देखो ये कॉमन आ रहा है, सर्कल कट कर रहा है क्या इन दोनों को, कहीं भी इंटरसेक्शन कहीं भी आ रहा है क्या, नहीं। तो ये दोनों ही No. अलग, ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आई हैव टेकन द इवेंट ए एज पोटैटो, what I have taken, potato, and this one I have taken as a mango. तो पोटैटो और मैंगो अगर मैं देखूं, दोनों एक ग्रुप की चीजें हैं, अलग अलग ग्रुप की चीजें हैं। पोटैटो क्या वेजिटेबल में, अलग राइट। मैंगो क्या है, मैंगो फ्रूट्स में आता है। तो अगर ये दोनों अलग चीजों की बातें करेगा, so that means they are mutually exclusive, right? And those who are not mutually exclusive, I will take one example here. Suppose that I have written here vegetable. क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वेजिटेबल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टमाटो। इवेंट बी किसका है, टमाटो। So tomato is a vegetable or not, tell me. Sir, yes, it's a vegetable. And here the event A is the table of vegetable. तो दोनों ही, ये दोनों क्या होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइटम सिमिलर होगा, राइट। सो अगर कुछ आइटम सिमिलर मिल रहा है, so we can say that they are not mutually exclusive. Understand? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। अभी mutually exclusive का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिया, कार्ड्स की बात करते हैं हम, चलो कार्ड्स की बात करते हैं। मैंने कार्ड में ले लिया ब्लैक कार्ड। क्या ले लिया मैंने, ब्लैक कार्ड एंड रेड कार्ड। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कुछ कॉमन,
color. नहीं, कॉमन कलर मतलब दोनों सेम कलर हैं क्या? No. They are अलग अलग कलर, they are different colors, right? So we can say this one as mutually exclusive. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे रेड कार्ड। मैंने क्या ले लिया? रेड कार्ड। एंड मैंने यहाँ पे ले Red लिया, card. मैंने यहाँ पे ले लिया हर्ट। आपको याद है हर्ट किस कलर में आता है? आपका दिल वाला नहीं, कार्ड वाला हर्ट। कार्ड वाला हर्ट किस कलर में आता है? दोनों कलर में आता है पार्डन? सर, दोनों कलर में आता है। नहीं, तो रेड कार्ड आता है और हर्ट किस में आता है? आई एम टॉकिंग हर्ट ऑलवेज कम्स इन द रेड। हर्ट रेड में आता है ना? Is it necessary what will on red card? हाँ, yes Sir, I'm asking it. yes it is necessary. All hurts are in red. सारे हर्ट रेड में ही आते हैं। आपको मैंने कल टेबल लिखवाया था ना, डू यू रिमेम्बर दैट? हेलो हेलो, Yes. मैंने कल Sir, टेबल yes. हाँ, कल मैंने टेबल आपको दिया था। उस टेबल में मैंने मेंशन किया था ना। सो इफ यू सी हियर, these will be what? These will be Not mutually. yes, this will be not mutually। मतलब अगर कुछ कॉमन हो गया तो ये आपकी आवाज बहुत कट रही है। योर इंटरनेट, चेक योर इंटरनेट प्लीज। हेलो, Yes, sir. आपकी आवाज बहुत कट रही है, प्लीज चेक योर इंटरनेट। एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। Okay, sir. या From लॉग आउट होके लॉग इन कर लीजिए। लॉग आउट एंड लॉग इन, लॉग आउट एंड लॉग इन प्लीज। Okay, sir. Yes, Meenakshi, can you hear me? Yes, Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. ओके, आप जरा अपना इंटरनेट ऑलवेज सही रखिएगा। ओके, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझिए क्या होता है यहाँ पे, राइट? ओके, सो आई एम मूविंग। Yes, हाँ, sir. दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स दे आर डिफरेंट एंड वी नीड टू वर्क आउट। ओके, I'm going for another question of mutually exclusive, and I will take how to do the problem here. Fine. So just Okay, taking sir. just taking one problem,
and we will see how to do that. और इसके बाद हम independent events पढ़ेंगे. Okay, so I'm taking one question and just showing you. Uploading. Okay, can you see this problem? Yes. A biased spinner gives a score 1, 2, 3, 4. The probability of getting 1 is 0.2. The probability of getting 2 is 0.3. And probability of getting 3 is 0.1. Calculate the probability getting of an odd score. Okay, what is the odd score here? 1 and 3. 1 and 3. So basically, if I go for the A here, we have to find the probability of getting 1 or 3, right? 3. So Yes. here we can write P, okay, 0. P1 plus P3, right? Because दोनों ही Yes. अलग अलग हैं, similarity कुछ भी नहीं है दोनों में, so we can write 0.2 and इसका है कितना 0.1, 1. so it will become here 0.3, right? 0.3. Okay, अब Yes. ये पूछ रहा है work out the probability getting score 4, तो क्या है, सबको ऐड करके माइनस कर दोगे आप, right? Once minus कर दें. अच्छा Yes, चलो sir. दूसरा क्वेश्चन इसमें सेम देखते लेते हैं हम. गिव मी मोमेंट. या एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसको भी देखते हैं. So they are mutually exclusive. So uploading the problem. Can you read the problem, please? Yes, sir. Yeah, please go ahead. A college has students who are in their first year, second year, or third year. 36% of the students are in their first year, and 33% are in their second year. This information is shown in the probability table. A student is chosen at random from the college. Work out the probability that it is a third year student. Yeah, so क्या करेंगे? 1 से We will add and one will subtract from 1. 1 से minus कर देंगे, right? So it will be something 0.31, I think, right? Okay. Yes. Now 400 students from the college go to Saturday night rock concert. Estimate the number of first year students who attend the concert. How you will do that? Total 400 students बताया, right? Yes. अच्छा, टोटल 400 स्टूडेंट्स बताया और पूछ रहा है फर्स्ट ईयर में से कितनों ने अटेंड किया. तो सिंपल सी बात है, 36% already they have told to me, right? Yes. So 36% of 400 will be equals to the number of students in the first year, right? Yes. So just multiply. So this will become how much? 36 times 4. So 144 144. Clear how to do this? upon 400. Yes. Okay. Taking the another problem. Just give me a moment. And after this question, we will move for our that one, independent one. Okay. Okay. Can you see the problem here? Yes, sir. Please read the problem. Alexi has a tin of crayons. Each crayon is either red or blue or yellow or green. The number of yellow crayons as the number of green crayons. Alexi chooses a crayon at random from the tin. The probability that he chooses a crayon is 0.3. The probability he chooses a blue crayon is 0.4. Find the probability that the crayon is red or blue. Right. So in this, we'll simply add 0.3 and 0.4 So find the because they are yes, asking of red blue. or blue. So red में ये है और blue का इतना. Blue में So ये this will है. become 0.7. Probability of Yes. front is yellow and green. So yellow के लिए क्या है? Yellow के लिए क्या है? दिया है क्या? So they are saying that number of yellow crayons is same as number of green crayons.
ओके 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 ओके, येलो और ग्रीन सेम है, स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो अच्छा येलो ग्रीन सेम है ना, अच्छा तो 7 7 1.15 हो जाए, नहीं रेड ब्लू 0.15 हो जाएगा, सो पॉइंट So how did you find that? हाँ How did you find that? ओके, सिंपल सी बात है, रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.3, ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4, येलो की प्रोबेबिलिटी हो गई x, और ग्रीन भी इक्वल है येलो के, तो x, ऑल ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 1। Yes. सो अगर आप देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0.7 प्लस Plus 2x is 2x. 1, so 2x is equal Yes. to 1 minus 0.7, so 2x is And equal 0.3. 0.3, so x is 0.15। तो इसके लिए मैं लिख दूं येलो की होगी कितनी 0.15, और ग्रीन के लिए भी हो जाएगी 0.15। 1.5. तो मुझे येलो और ग्रीन दोनों चाहिए, सो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो आई एम गेटिंग 0.3 हियर, राइट। Yes, sir. और ग्रीन के लिए 0.15 एज इट इज वी आर गेटिंग नाउ, करेक्ट, Okay. अंडरस्टूड। Yes. अच्छा चलो ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, 327 पेज किधर गया, चलो ठीक है, ओके वी आर मूविंग अहेड and we will go for, give me a moment, हाँ ये मैंने क्या किया, give me a second, हाँ हाँ ओके ठीक है, shall we move। Yes, sir. अच्छा ये बना लिया पूरा पूरा, हाँ ये बना लिया जी। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या आता है अभी, इंडिपेंडेंट इवेंट। Independent event. चलो इंडिपेंडेंट इवेंट पहले पढ़ लेते हैं, वो होता क्या है, ठीक है, just hold second, I'm just telling you what it is actually। Read the statement please। If the two, Independent events. If two events are independent, then one does not interfere with the other. For example, suppose you are tossing a coin and drawing a card from a pack. The result of the coin, heads or tails, does not affect which card is selected. You can solve simple problems on independent events by drawing up a table of equally likely outcomes. right, so these are known as independent event, ठीक है। अब एक काम करो जरा सा आप, मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, देखो मैं इस पेज पे ना कुछ चीज लिखने जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो दिस इज द रूल फॉर द प्रोबेबिलिटी, करेक्ट फॉर्मूला, नॉर्मल थ्योरेटिकल जिस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, राइट। कैन यू हियर मी मीनाक्षी, कैन यू हियर मी मीनाक्षी, कैन यू हियर मी, Yes, yes. ओके। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, Yes, ये फॉर्मूला मैंने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लिखा है, राइट। उसके बाद आता है पी एस प्लस पी yes, नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तीसरा mutually yes, exclusive, give me a second, I need to lock the door, yeah, mutually exclusive means P A और B, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पी ए प्लस पी बी, इसका क्या मतलब होता है, दोनों अलग रहते हैं, राइट, करेक्ट। yes, yes, इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट में हम क्या यूज करते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट में होता है पी ए एंड बी, क्या होता है ये
PA and एंड B. B, इसको यूज करते हैं PA टाइम्स PB से। क्लियर है ये? क्लियर Sir, है ये? sir, independent. हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे इंडिपेंडेंट नहीं समझ में आया। A ओके एंड B और A और B में क्या फर्क है? हाँ इसमें हम प्लस और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हाँ, सर? वही आई एम कमिंग टू दैट, डोंट वरी, आई एम कमिंग टू दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Give me a second, please. I'm just coming onto that. Okay. I will take some figure and then I will let you know. I'm just going to upload one example here. Okay. One image which will make you understand a little bit better. Okay. Give me a second. ये वाला एग्जाम्पल मैं लूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। Okay. Taking. Okay. Can you just read it? Can you just read this part first? Can you hear me? Yes sir. Please read this first part. A and B cannot at the same time both simultaneously invent conveys the event. Hello, can you hear me? Yes मीनाक्षी, आपका आपकी sir. आपका इंटरनेट इज नॉट गुड। आप नेक्स्ट सेशन में एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करना, इंटरनेट बेटर हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देता हूँ। व्हाट डज इट मीन? दे आर फ्रॉम द सेम आइटम। दे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्रॉम द सेम आइटम, लाइक क्वाइंस। क्वाइंस में हेड और टेल, ये दोनों एक ही चीजों से आएगी ना, हेड से आएगा या टेल से आएगा, राइट? तो मतलब हम क्वाइन फेंक रहे हैं तो हमें क्वाइन से ही हेड भी मिलेगा और क्वाइन से ही टेल भी हमको मिलेगा, राइट? तो देखा जाए तो दे आर व्हाट एट द सेम टाइम, बोथ इवेंट्स कैन नॉट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? मतलब क्वाइन को फेंका तो एक ही टाइम में दोनों ही आ गए, हेड भी आ गया टेल भी आ गया? No. नहीं। तो इस तरह के, लेकिन हो रहा है दोनों एक ही से। क्या हो रहा है? दोनों एक ही से, एक राइट? ही से हो रहा है, तो दे आर, लेकिन सर हम उनको हाँ बोलिए। ऐड तो कर रहे हैं ना, हाँ लेकिन हम उनको ऐड तो कर यस, तो रहे इन हैं। इन इन दोनों को अगर एक साथ करना है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? इनका इवेंट कैसे बनेगा? इवेंट डायग्राम, इनका इवेंट डायग्राम अलग अलग बनेगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, राइट? दोनों में कोई कॉमन, मैंने एक इवेंट डायग्राम आपको शायद दिखाया भी, इमेज। आई विल जस्ट शो यू द इमेज हियर। ये देखो, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? हेलो हेलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को हमें ऐड कर देना पड़ेगा, राइट? अब इसमें क्या मिल रहा है हमें? इसमें वी आर गेटिंग द कॉमन पार्ट, सो दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट। कॉमन पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज इंस्ट्रक्शन यू हैव सीन हियर। इन दिस केस वेयर इज द फिगर? ओके, यहाँ देखो, ये इंटरसेक्शन का पार्ट है। कैन यू सी द इंटरसेक्शन पार्ट हियर?
Yes, sir. इंटरसेक्शन का पार्ट, तो इंटरसेक्शन का पार्ट कैसे लिखते हैं? PA टाइम्स PB. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर जब ये कॉइन की बात कर रहे हैं तो ये एक टाइम पे एक नहीं आ सकता। जैसे अगर हम एक टाइम टॉस करते हैं तो हेड हेड ए नहीं आएगा। ही आएगा ना। यस, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड आएगा. सो दीज तो काइंड फिर ऑफ हम उनको ऐड क्यों कर रहे हैं? total probability, total, so because they are mutually exclusive. मैंने टाइप बताया कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर दोनों को जोड़कर अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी? अंडरस्टैंड? मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स में कौन सा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए लिया है, नॉट फॉर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ए कुछ और कहीं और से ले रखा है और बी पार्ट जो है वो कहीं और से ले रखा है. दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास. ओके, आई विल टेक वन एग्जांपल तो आपको शायद एग्जांपल से समझ में आएगा. ओके, हेलो. यस सर। मैं एक एग्जांपल सर अगर हम इंडिपेंडेंट में बात करें तो तो वो इंडिपेंडेंट में बात करेंगे तो वो दोनों दो अलग अलग कामों की बात करेगा, एक काम की बात नहीं करेगा. ठीक है, हेलो. यस सर। मैं एक एग्जांपल थोड़ा सोच रहा हूँ आपको कौन सा मैं एग्जांपल दूं तो ज्यादा बेटर हो. एक सेकेंड, just a moment, I'm just thinking for the example which will be better for you for independent. Give me a moment. I'm taking the examples, don't worry. Can you hear me? यस सर। Okay, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ. उसको जरा ध्यान से देखेंगे. मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है जिसमें जिसमें 10 ग्रीन बॉल है. क्या है? 10 10 ग्रीन. ग्रीन बॉल। बैग ए है मेरे पास जिसमें 10 ग्रीन बॉल, 5 रेड बॉल एंड 3, or you can say 5 blue ball. 5 blue ball है. ब्लू करेक्ट? बॉल। ओके. सो एंड मेरे पास दूसरा एक बैग है जिसमें मेरे पास 5 green, 5 red and 5 blue and 10 येलो बॉल है. क्या है मेरे पास? येलो 10 बॉल. येलो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। अच्छा, दोनों दो इवेंट अलग अलग मैंने लिए हैं यहाँ पे. दोनों एक दूसरे यस। से कोई रिलेटेड है क्या? दोनों में कोई यस क्या रिलेशन दोनों में? सर देखो दोनों कलर में आपने ग्रीन लिया है, रेड ब्लू लेकिन सब सेम है। लेकिन दो अलग अलग बैग्स है ना मेरे पास. यस। क्या है मेरे पास? अलग अलग बैग्स अलग है. अलग बैग। अब मैं पूछता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting blue and yellow. क्या मैंने पूछ लिया? और यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ रेड पिंक, 5 पिंक. मैं और यहाँ पे मैं पिंक दे देता हूँ. ठीक है, क्या मैंने दे दिया यहाँ पे? पिंक. अब पिंक। बताओ, पिंक को बी से कोई मतलब है क्या?
No. अच्छा, और येलो को ए बॉक्स से कोई मतलब है क्या? No. So they are what? They are independent to each other. They are what? They are independent Independent. to each other. To- मतलब अगर हम ए में काम करें, ए की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो उससे हमें बी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है? और अगर हम बी में कोई काम करें तो हमें ए से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, नहीं. कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उससे बी को देखना ही नहीं है हमें. So that kind of events are known as Independent independent event. events. Is that clear to you? अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो ये, सर wait, जैसे सॉल्व सॉल्व अगर बी में भी रेड है और ए में भी रेड है वैसा क्वेश्चन नहीं तो आएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा. अच्छा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा कि पिंक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास टोटल बॉल कितना है? 10 और ये 15, 25. 25, 5/25, राइट? Yes. 5/25 टाइम्स येलो के लिए लिख देंगे जी 10/25. सो ये बन जाएगा 50/625. दिस इज द आंसर. सर हम इसमें पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं करते? क्योंकि बीच में तो एंड ही गिवन है ना. एंड है, याद रखना, जब एंड रहेगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और रहेगा तो हम ऐड करते हैं. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन पार्ट. एंड का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन पार्ट. मैं एक एग्जांपल लेके और समझा रहा हूं आपको इस चीज को. डोंट वरी, आई विल शो यू. आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट. ओके, आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? क्या लिखा है ऊपर में? लुक हियर. A coin is tossed and a six-sided dice is rolled. दो चीजें हैं. एक क्या ले लिया इन्होंने? एक कॉइन ले लिया और एक ले लिया, क्या ले लिया? डाइस. कोई प्रॉब्लम है? Right. अच्छा, अब क्या पूछा इसने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन एंड गेटिंग अ 6 ऑन द डाइस. सो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? 1/2. और 6 ऑन द डाइस के लिए Yes. प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? 1/6. 1/6. तो अब इस दोनों में देखो क्या लिखा है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग एंड. यहां देखो, यहाँ एंड शब्द का यूज किया है. कैन यू सी दैट? Yes. Okay, so when they are using the word and, so two probability find independent, they are independent event. अब देखो, डाइस को क्वाइन से कुछ मतलब है क्या? No. और क्वाइन को डाइस से कोई मतलब है क्या? No. तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. एंड जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट में एंड का वर्ड होता है, सो एंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसका अगर सॉल्व करना रहेगा तो हम 1/2 टाइम्स 1/6. So 1/12 is the answer. So you can see it here. Can you see that? Can you see that? Meenakshi, can you see that? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. I'm taking one more problems. Just give me a second. Give me a moment. एक मिस हो गया. Give me a moment. I'm just telling you on the one. Uploading the things. एक ये देखो एग्जाम्पल. ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जाम्पल है. कैन यू सी दिस? Yes. अब जब एस वो चूज कर रहा था, यहाँ पे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी, मैं पहले बता देता हूँ. दे आर आस्किंग द प्रोबेबिलिटी एस एंड स्पेड एंड 4. क्या पूछा प्रोबेबिलिटी उन्होंने? A, spade and fool. अच्छा, ठीक है.
अब जब एस पूछा उन्होंने, तो एस में कितने कार्ड होते हैं? 4 4/52 लिख दिया इन्होंने। जब Yes. एस चूज कर रहे थे ये, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ स्पेड कार्ड लेना है या क्या कार्ड लेना है, कुछ नहीं देखा। फिर स्पेड चूज करेंगे तो कितने स्पेड आते हैं? 13 स्पेड्स आते हैं, राइट? करेक्ट? कैन यू हियर मी? मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? Yes. ओके। और जब 4 नंबर चूज कर रहे थे कार्ड में, तो कुछ नहीं देखा, सिर्फ 4 नंबर चूज किया। ठीक है, तो 4/52। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी, ये इंडिविजुअल इवेंट हो जाएगा। सो इंडिविजुअल इवेंट में क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। सो यू कैन सी एवरी नंबर दे हैव, every probability they have just multiplied for the individual event or independent in events. Clear है अभी? Yes, sir. Okay, so these are known as independent event. These are known as what? Independent. Independent event. हाँ, इसका मतलब होता है कि हमको इस एक से दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है? Okay, sir. Okay, so I'm just taking independent event, clear है? So मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ and I will just show you to you now. Okay, अब देखो, ये कहता है when Latson drives homes from work. क्या कहता है ये? Latson, When Latson drives home from work. he has to pass through 2 sets of traffic lights. एक ट्रैफिक लाइट नहीं है, 2 ट्रैफिक लाइट है। एक ट्रैफिक लाइट ये हो गई और एक ट्रैफिक लाइट ये हो गई। ठीक है, तब पहला पास करेगा, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग Yes. रेड? पहला पास करेगा, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड? 0.4. तो जब, एक बात बताओ, पहले रेड लाइट को दूसरे रेड लाइट से कोई मतलब है क्या? No. So they will be what? They will be independent event, right? Event. And the Yes. probability of second set of red getting red is what? 0.3. तो 0.3. दूसरे को पहले से किसी कोई मतलब है क्या? No. कोई मतलब नहीं है। Now calculate the probability that both set will be on red. मतलब दोनों में रेड ही हमें दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे? दोनों में रेड दिखाई दे तो हम Plus. लिखेंगे पी बोथ रेड, तो प्लस क्यों करेंगे? दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? सो पी ए। फिर तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअल है? एक बात बताओ, इसमें इसमें ये रेड लाइट और ये रेड लाइट अलग अलग है या सेम रेड लाइट है? अलग अलग है। अलग अलग जगहों पे लगी हुई है। इस रेड लाइट के रेड होने से, रेड लाइट ए, रेड लाइट बी, रेड लाइट ए के रेड होने से रेड लाइट बी को कोई फर्क पड़ना है क्या? नो सर। और रेड लाइट बी के रेड होने से रेड लाइट ए को कोई फर्क पड़ना है क्या? नो सर। तो दोनों क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों में Yes. कोई कॉमन नहीं रहा ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिलेशन नहीं है। सो वी कैन राइट रेड एंड रेड, रेड एंड रेड मीन्स ए और बी दोनों के लिए। सो क्या हो जाएगा? 0.4 टाइम्स 0.3 और ये बन जाएगा 0.12। क्लियर? क्लियर? Yes. अच्छा, Yes. फिर पूछता है इसमें, Sir. सेकेंड पार्ट पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर सेट विल बी ऑन द रेड। दोनों में कोई भी रेड नहीं है, दोनों में कोई भी रेड नहीं है, ये पूछ रहा है ना यहाँ पे। सो पी नाइदर रेड, नाइदर रेड। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम? पी Yes. नाइदर रेड इन फर्स्ट सेट times P neither red in second set। लिखेंगे हम लोग।
अब पहले से टिल क्या करना पड़ेगा, यस वाले में तो 0.4 था, नो वाले में क्या करेंगे, 1 माइनस 0.4 टाइम्स 0.4 1 माइनस 0.3, सो ये आ 0.3 जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.7, सो ये हो 7 जाएगा 0.42। 1 point ओके अब समझ आया कि दोनों ही में रेड लाइट नहीं, मतलब ग्रीन लाइट हमें दिखाई दे, और ग्रीन लाइट कब हमें दिखाई देगी, जब हम 0.42 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर विद यू नाउ? यस यस और दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब है क्या? नो सर दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं है ओके चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और ओके so this time I wanna do या डोंट वरी, ओके आई एम जस्ट टेकिंग द प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकंड, आई एम टेकिंग द प्रॉब्लम हियर। Okay. Can you see the problem? Can you read the problem, please? Ian is a bowler in the school cricket team. Most of the time he bowls at his regular speed, but occasionally he tries to fool the batsman by bowling a slower ball. The probability that a randomly chosen ball is slower than 1 over 12. Slower balls occur independently of each other. Ian has two remaining balls to bowl. Calculate the probability that the first ball is at his regular speed and the second one is slower ball. Mm-hmm. Sir, Yeah. कर दिया. So try to solve it. सर ये इंडिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट इवेंट Okay. तो is a slower one is 1 over 12 first ball at his तो रेगुलर स्पीड का तो दिया ही नहीं है प्रोबेबिलिटी अच्छा चलो मैं करता हूँ. Okay. No issue. सिर्फ No स्लोअर बॉल issue. का No दिया है issue. No issue. So Ayan is a bowler in a school cricket team. Most of the time he bowls at his regular speed, but occasionally he tries to fool the batsman by bowling a slower ball. स्लोअर बॉल एक इसका रेगुलर स्पीड है और एक इसका स्लोअर बॉल है, राइट? The यस probability that randomly chosen ball is a slower one is 1 by 12, right? Slower ball occurs independently of each other and has two remaining balls to bowl. Okay, दो बॉल so बचा. we can subtract एक मिनट to get the probability एक मिनट. Calculate the probability that the first ball is at regular speed and the second one is a slower ball, right? अच्छा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें एक तो रेगुलर स्पीड हो गया और एक स्लोअर बॉल हो गया, राइट? तो आप एक काम yes करो, जस्ट अ सेकेंड, both are regular speed balls. Okay, okay. दो बॉल फेंकनी है, पहली बॉल फेंकेगा वो रेगुलर स्पीड पे, ठीक है, और दूसरी बॉल फेंकेगा वो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ slower 1/12. अच्छा, तो 11/12 हो जाएगा उसका कितना, ओके ओके ठीक है, एक से माइनस कर लो, एक से है माइनस, ना 12/12 से माइनस कर देंगे तो 11/12 आ जाएगा हाँ, तो एक हो जाएगा 11/12 टाइम्स 1/12, राइट? और yes दूसरे केस में हो जाएगा 11/12 टाइम्स 11/12. इज दिस क्लियर? सर या टेल मी. पर हमें ये पर्टिकुलरली कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट बॉल स्पीडली ही आ रही है और सेकंड जो बॉल है उसकी स्पीड स्लो है क्योंकि इसने बोल दिया ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया, हमें निकालना वैसे ही है, फर्स्ट बॉल रेगुलर स्पीड पे और दूसरे पर स्लोअर बॉल पे. तो सिंपली we'll subtract and then multiply तो सो इसका आंसर हो जाएगा
11/12 टाइम्स 1/12 1/12. और इसका आंसर हो जाएगा 11/12 क्योंकि 11/12 बोथ into बोल रखा 11. है 11/12. ओके Yes. Yes. ओके अभी चलो इसके बाद एक एक्सरसाइज है. आई थिंक टुडे द टाइम इज गोइंग टू फिनिश. सो Yes. हमारी नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगी, राइट? सो वेंसडे Yes. में अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स देखा एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखा, राइट? अब कुछ Yes. क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों ही कंबाइन होंगे, right? Okay. And that will be our the last topic of this chapter, जहां पर दोनों ही क्या होंगे, combined होंगे. Fine होंगे. ठीक है, तो हम लोग को वो भी अभी देखना है. और याद रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम a प्लस बी करते हैं, ठीक है, और और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में में हम a टाइम्स b करते हैं. B. हाँ, इस चीज को याद रखना आप. ठीक, सर या जैसे आज के लिए आप कोई क्वेश्चंस या कोई वर्कशीट है? यस यस आई विल सेंड टू यू, डोंट वरी. ओके. मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से करना, ठीक है? ओके सर. I have the things with me. I will send to you. Not to worry about it. Okay? ओके सर. Yeah. Okay, fine. So we will meet on this वेडनेसडे. Wednesday. और मैंने लास्ट सेशन का नोट्स और मैंने आपको वो भी भेज दिया है, वीडियो भी, ठीक है? आप एक काम ये कर सकते हो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो मुझे बार बार वीडियोस भेजने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सेशन नोट्स भेज दूंगा तो हो जाएगा. वीडियोस अपलोड जैसी हुई तो आपको मालूम हो जाएगा. क्लियर है? ओके सर. यस, आप ये करना. वैसे मैंने फिलहाल के लिए भेज दिया है, तो आप वहां सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपको क्लासेस के वीडियोस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है? ओके सर. या ओके, सो वी विल मीट ऑन वेडनेसडे. फाइन. यस. ओके, और अगर बुक आ जाएगी फाइन. तो मुझे वैसे ही इन्फॉर्म कर देना आपकी बुक आ गई है, ठीक है? ओके सर. या ओके, बाय, टेक केयर.